Morning class 10th. I hope all of you are very well at your home. After a long time we are once again on online platform. In previous live lecture we have completed up to question number 6 of chapter 9. The name of the chapter is application of trigonometry. Okay. In today's lecture we will try to do some more question of same exercise. So as you can see the question on the screen, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. So let's see. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जिस पर एक टावर लगाया गया है। उस टावर के बॉटम और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। इट मीन्स वी नीड टू फाइंड ए बी। आई होप कि क्वेश्चन के थ्रू आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर एक टावर लगाया गया है और हमें उस टावर की लंबाई पता करनी है, साथ ही साथ हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस पता करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द बेस। सो वी विल कंसीडर अ ट्राइंगल in triangle BCD. Okay, in triangle BCD, as you can see, we are going to find base and the given thing is height, and all of you know the relationship between height and base is tan theta. Okay, so we can consider here tan theta is equal to perpendicular divided by base. So tan 45, tan theta, what is theta? Theta is 45 degree, is equal to perpendicular is BC and base is DC. Okay, so tan 45, the value of tan 45 is 1. BC has given 20 and divided by DC, so DC भी क्या आ गया आपका 20 मीटर। ओके, तो अभी हम लोगों के पास ये बेस भी मौजूद है 20 मीटर, जो कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया। नाउ अब हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल ADC। ओके, अगेन इन ट्राइंगल ADC, again same thing will be happen, because in this time we are going to find the total length of AC. Okay, and we have DC also, so again we will use tan theta to find this. So tan theta is equal to perpendicular divided by base. So tan 60 is equal to what is perpendicular, that is AC, divided by base is DC. Okay, so the value of tan 60 is √3. AC divided by DC is 20 meter. So AC is equal to 20 √3 meter. Okay, now in the last step, so the length of height of the tower, so height of the tower will be AB. So AB is equal to AC minus BC. What is the value of AC? AC is 20 √3 and the value of BC is 20. So if you will take common 20, so 20 √3 minus 1 meter. So the height of the building is 20 √3 minus 1 meter. I hope all of you understood. Okay, if yes, so please write the comment in comment box. Now the second question you can see on the screen. Question asks,
A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the point of the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Okay, find the height of the pedestal. तो जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया सेम क्वेश्चन है ये, बस इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो है आपने डायग्राम बना लेना है। मान लीजिए पेडिस्टल जिस पे स्टैचू खड़ा है, ओके, यानी वो पायदान जिस पे स्टैचू जो है खड़ा किया गया है, मान लेते हैं किसी भी टाइप का स्टैचू, ये एक स्टैचू बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस स्टैचू की जो है लंबाई दी हुई है 1.6 मीटर, और इस बार आपको जो है इस पेडिस्टल की लंबाई पता करनी है, हाइट पता करनी है, ओके। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पॉइंट से स्टैचू का जो टॉप है वो 60 डिग्री बना रहा है, ओके, और स्टैचू का जो बॉटम है वो 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. pedestal का टॉप ये होगा, स्टैचू का टॉप ये होगा, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इस बार हम लोगों को हाइट जो है पता करनी है, ओके। तो आइए यहाँ पर ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए, इस बार कुछ और नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ओके। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने जो है इन दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन चीज़ है वो बेस है, ओके। तो हमने बेस के अकॉर्डिंग इक्वेट करना है क्वेश्चन को। चलिए करते हैं, सबसे पहले बेस को पता करते हैं इन द टर्म ऑफ हाइट। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इन ट्राइंगल क्यू आर एस अगेन वी विल अप्लाई हियर tan theta. Tan theta is equal to perpendicular divided by base, and what is perpendicular? Perpendicular is QR and base is SR, okay. So now tan 45 is equal to QR is H and SR दिया ही नहीं तो हम इसे जस्ट मान लेते हैं स्मॉल b, ओके, b base. Now what is the value of tan 45? So as all of you know, 1 is equal to h by b, so base is equal to height. तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आइए इन ट्राइंगल पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस अगेन वी विल अप्लाई tan theta which is equal to perpendicular divided by base, and in triangle PRS the perpendicular is PR and the base is SR. So tan 60 is equal to what is PR? PR दो टुकड़ों में है, तो PR को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 1.6 plus H divided by B, okay, SR is B. So what is the value of tan 60 degree? I hope all of you know. √3. So √3 is equal to 1.6 plus h divided by b. So we will write it in the term of b. So b is equal to 1.6 plus h divided by √3, ओके, मीटर। यहाँ पर ये भी जो है कि मीटर में ही होगा। अब इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। क्या है कॉमन? ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो b के बराबर है, इसीलिए आपस में भी ये क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ b के बराबर, बेस के बराबर हैं,
तो ये आपस में भी इक्वेट हो जाएंगी। सो h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच डिवाइडेड बाई √3। अभी क्या करेंगे, √3h और ये h इधर लेकर आएंगे तो माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। ओके, सो h कॉमन ले लेंगे। सो h इज इक्वल टू, तो h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। सो हाइट क्या आ गई पेडिस्टल की, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। चूँकि हम इस फॉर्मेट में नहीं छोड़ सकते हैं, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हमेशा हमें होल नंबर रखना होता है या रियल नंबर। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 से, तो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किन किन बिंदुओं को हमें सॉल्व करने के समय ध्यान रखना है। ओके, तो इसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Okay, if the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो यहाँ पर हम लोग दो वर्टिकल चीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका टावर हो गया जिसे हमने नाम दे दिया AB, और इस साइड में एक बिल्डिंग हो गया जिसे हमने नाम दे दिया PQ। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ, ये है टावर और ये है बिल्डिंग। ओके, फिर इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर दी है तो आपको बिल्डिंग की ऊंचाई पता करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हम मान लेते हैं इसका हाइट h है जिसे हमें पता करना है। ओके, तो आई होप कि आपको जो है कि डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हमें बिल्डिंग की हाइट पता करनी है तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो किस ट्रायंगल में बिलोंग कर रही है। फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा ट्रायंगल PQB, और PQB में अगर आपको PQ इट मीन्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है तो इस ट्रायंगल के बाकी किन्हीं दो साइड में से किसी एक साइड की जानकारी होनी चाहिए, या तो आपको PB मालूम होना चाहिए या QB। ओके, हमें फ़िलहाल कोई भी साइड नहीं मालूम है, लेकिन जब हम फोकस करते हैं ट्रायंगल ABQ में तो ABQ में हमें AB की जानकारी है और हम AB की हेल्प से BQ को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज BQ जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABQ। अगेन अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ बात हो रही है परपेंडिकुलर की और बेस की, तो हम क्या करेंगे tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BQ या QB। ओके, QB। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज 60 डिग्री। सो tan 60 इज इक्वल टू AB हैज़ गिवन 50 मीटर एंड QB हमने मान लिया, इसे बेस मान लेते हैं B। ओके, हमने बेस इसे मान लिया B डिवाइडेड बाई B। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? 1/√3 इज इक्वल टू 50 बाई B। सो B इज इक्वल टू 50√3 मीटर। ओके, तो ये बेस यानी BQ क्या आ गया हमारा
50√3। आप चाहें तो इसे QB ही रहने दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसको बदलना। ओके, QB एंड QB। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PQB अगेन हम अप्लाई करेंगे tan थीटा, बिकॉज वी नीड टू कंपेयर बिटवीन हाइट एंड बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज PQ and base is QB. Okay, now what is the value of theta? Theta is 30 degrees, so tan 30 is equal to perpendicular is H, it means PQ is H and QB has 50√3. okay, 50√3. what is the value of tan 30? The value of tan 30 is, I think, वेट यहाँ पे हम लोगों ने लगता है कुछ मिस्टेक कर दी है। tan 60 की वैल्यू √3 होगी। ओके, तो फिर आपकी ये वैल्यू जो हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाय √3, और फिर इसे हम चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय √3, तो ये हो जाएगा 50√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे। 50√3 डिवाइडेड बाय 3 ट्रांसपोज करेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी और ये इस साइड में आएगा, तो 50√3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू H। सो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 बचा 0, 20, 3 6 जा 18, तो 16 होल 2/3 मीटर। ओके, सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 16 होल 2/3 मीटर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन। Question number 1 asks the angle of elevation of the top of a tower from the 2 point distant S and T from its foot are complementary. Okay, I hope all of you know about complementary angle. Prove that the height of the tower is √ST. Okay. Question number 2 says the shadow of a tower at a time is 3 times as long as its shadow. When the angle of elevation of the sun is 60 degree, find the angle of elevation of the sun at the time of the longer shadow. Okay, I hope all of you will do both the questions by evening and send to me and your respective teacher to or through WhatsApp. Okay, so मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।